दर्शन देख जीवां गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभु मेरा। हे मेरे सतगुरु, हे मेरे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, तुहाडे दर्शन करके ही मैं जी रहा, तुहाडे दर्शन करके मैं जिंदा। जे असी गुरु वास्ते अपने मन में लियाइए ना कि हे सतगुरु तेनू देख के मैं जी रहा, तेरे दर्शन करके मैं जिंदा, इन्नी तांग होनी चाहिए मन में कि मैं सतगुरु के दर्शन कर जा रहा ना, उस तांग नाल उस प्यार नाल जो असी सतगुरु के सामने खड़े होने ना, उस प्यार नाल गुरु कृपा करे कि असी उस प्यार नाल आन के जो असी मत्था टेकते ना कि हे सतगुरु आप कृपा करो कि साडे विच ओ विश्वास ओ प्यार जागे। अज जिहड़ी आपां गल करनी ना दर्शनां दी गल करनी, दर्शनां दी कि गुरु दे दर्शन करने when you come and see your guru, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। what happens actually ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ was sitting in his darbar and there was a Muslim religious man who came to see Guru Ji and ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ कि संगत मत्था टेक रही है, दरबार सज रही है, मत्था टेक रही है, दरबार सज रही है, मत्था टेक रही है, सज रही है। ते गुरु साहब ने पूछा उन्होंने काजी जी ने कि हे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तुसी ये दसो कि जे आ जिहड़ी संगत तुहाडे चरणां ते मत्था टेक रही ना ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ। What's the point of putting your forehead in front of Guru? Listen to this carefully, okay? If you don't remember the Sakhi, I'll remind you if you remember. Do you remember this? I told you before. No, never mind. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜੀ ਸਲਾਦੀਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। What's the point of doing that? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਸਟੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਰ ਦਵਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। Bring a stamp. गुरु साहब ने आख्या एक स्टैम्प ले आओ, एक दवात ले आओ, the impact and एक कोरा कागज ले आओ। सिखा ने बचन मान के लिया ते गुरु साहब ने की कीता उस स्टैम्प ना काजी सलादीन नु दिता ते उन्होंने आखे काजी जी पढ़ो ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, try to read it for me, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਜੀ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਸਲਾਦੀਨ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਟੈਂਪ ਪੈਡ ਲਈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰ ਪੁੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟੈਂਪ ਪੈਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਸ the words always ਪੁੱਠੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। he could not read it। he says ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ I can't read it। ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਜੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੇਖ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, I can't read them, ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਲੇਖ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਜੀ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਦਵਾਤ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਟੈਂਪ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਤ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਏ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਹੁਣ ਪੜ। ਐਂਡ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ when you take a stamp and you put it, what happens to the words? They become straight। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਹੁਣ ਪੜੋ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਹੁੰਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। That is why it's so important ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਆਣ ਕੇ ਟੇਕਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਭੈੜੇ ਲੇਖ ਉਹ ਮਿਟਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਹੋਇਆ 1984 ਚ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਲੇਖ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ
हामी भरी ते कहने लगे जरूर नौजवान। ते इस तरह गल्लां चल पईयां। गल्लां करदे 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 बाबा जी ने पहला ना लाडलियां फौजां दी गल सुनाई। निहंग सिंह इस लाडलियां फौजां, ठीक है। बाबा जी ने गल सुनाई लाडलियां फौजां दी। सुनांदे 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 गल 1984 धर्म युद्ध मोर्चा उत्थे गल पहुंच गई। ते बाबा जी कहन लगे पुत्र, कहते संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले दी गल मैं आप जी नूं दसां। गल चली सीगी लेख मिटाउण दी। कहते संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले दे संगत विच सेवकां विच एक दिन एक सिख ने संत जी नूं आख्या कि संत जी, मैं एक ऐसा जोशी मैं उन्हें जानता है जेड़ा मत वेख के मथे दे लेख दस दिंदा तेरा तुहाडा आने वाला समा किस तरह होएगा, मथे दे लेख वेख के दस दिंदा है। संत जी मुस्कुराए ते कहने लगे ठीक है, उन्होंने बुला लो, असीं पुछ लांगे साडा जेड़ा आने वाला समा वो किस तरह है। संत जी ने वो व्यक्ति नूं आख्या, सिंह नूं आख्या जोशी नूं बुला लियाओ। ते वो जोशी आए, फतेह गजाई बैठे ते बाबा जी ने एक सिंह नूं बुलाया, कहते सिंघा इत्थे आ मेरे लागे बैठ। ते बाबा जी ने वो जोशी नूं आख्या जोशी, इस सिंह दे मथे दे लेख पढ़ के मैनूं दस इहदा फ्यूचर की है, इहदा आने वाला समा किस तरह है। जोशी उहदे हाल वेखी गया वेखी गया वेखी गया। सारे वेखदे ने, जोशी वेख रहा की गल है, जवाब नहीं दे रहा की गल होगी। वो वेखी जाए, बड़ी कोशिश की, हाथ जोड़ के कहता बाबा जी ये लेख ही है नहीं। कहते कोई लेख नहीं, ये मथे ते कोई लेख है नहीं। अच्छा खैर दूसरे सिख नूं बुलाया, जोशी ये लेख वेखो। निहंग बाबा संतोख सिंह जी सुना रहे हैं गल। जोशी ने फिर वेख्या मथे दे लेख, हाथ फिर जोड़ते बाबा जी एदे भी लेख है नहीं। बाबा जी जान ही जान संत बाबा जरनैल सिंह भिंडरां वाले ते कहने लगे अच्छा। तीसरे सिख नूं बुलाया, ओनू बिठाया ते बाबा जी कहने जोशी एदे मथे हाल लेके दसो। जोशी ने फिर हाथ जोड़ते कहना बाबा जी ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੇਖ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਪੜੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟਰਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨਾ जिथे धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया, सारे बोलो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। उत्थे लै गए जिथे महाराज प्रकाश किया सी ते जोशी नूं कहण लगे हे जोशी गुरु साहब अगे मत्था टेको। जो जोशी ने मत्था टेकिया ना, जो सीस ऊपर किया ते बाबा जी ने आख्या कि जोशी इत्थे ध्यान लगाओ, इत्थे देखो, यानी कि सामने महाराज के सामने मत्था टेकदे हैं ना जिथे, उथे इशारा किया कि जोशी इत्थे वेख। ते जदों जोशी ने उथे निगाह मारी ना, उथे बेअंत लकीरां सीगियां, बेअंत लकीरां, बेअंत लकीरां, बेअंत लकीरां। जदों सिख अपने गुरु दे चरणों च सिर टेकदा, मत्था टेकदा, सिर झुकांदा, मत्था टेकदा, गुरु पता की करते हैं जिहड़े सारे लेख ना जिहड़े असीं बुरे कर्म कीते हुंदे ने, जिहड़ा साडा बुरा समा आउण वाला हुंदा है, वो गुरु अपने ऊपर ले लैंदे ने। साडे साडे माड़े कर्म माड़े लेख सारे गुरु मिटा देंदे ने। आप जी ने बिधि चंद की साखी सुनी हुई ना,
भट्ठे च बैठे सीगे, गुरु ने अपने उपर लिया। होर भी बेअंत साखियां ने जिथे सिख जदों आण के मत्था टेकदे ना, प्यार नाल मत्था टेकदा है, एक लेख बदल जाने, एक लेख मिटा देंगे। जिस भावना नाल गुरसिख आण के मत्था टेकदा है, फिर उस तरह गुरु बख्शिश करता है। कई ऐसे भी होंगे ने जिहड़े आण के मत्था टेकदे, उन्हां दे मत्थे दे लेख विच, उन्हां दे किस्मत विच कोई ऐसियां चीज़ां बनी जिहड़ियां नहीं होंदियां ने। एग्जाम्पल, माता सुलखनी जी मत्था टेकण दी भावना गुरु हरगोबिंद पातशाह के टाइम ते महाराज को आए, मत्था टेक के बेनती की कि हे सतगुरु, भावना मत्था टेकण दी भावना, मत्था टेक के बेनती की सतगुरु जी, कर औलाद है नहीं, बख्शिश करो। मत्था पर टेकना है, भावना दी लोड़ है। माता सुलखनी ने मत्था टेकिया सतगुरु के चरणों से, कहने लगे सतगुरु जी दया करो, बख्शिश करो, औलाद नहीं है, आप जी बख्शिश करो। श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह ने की किया, महाराज ने नेत्र बंद किए, अंतर ध्यान होए, थोड़े समय वास्ते महाराज शांत रहे, चुप रहे, ते अखा खोल के, नेत्र खोल के महाराज ने माता सुलखनी वाल वेख के आख्या, माता जी तुहाडी किस्मत विच औलाद है नहीं, तुहाडी किस्मत विच माता जी औलाद है नहीं। गल शुरू हुई सी, पुठे लेख सीधे करने, पैड़े लेख मिटाने, जिहड़े लेख नहीं है वो बख्शिश करके बख्शिश करनी। माता तेरी किस्मत विच औलाद नहीं। माता मायूस हो गई, चली गई। मन विच ऐसा ख्याल आया कि मैं सुनिया सीगा कि गुरु नानक दे दर तो कोई खाली नहीं जाता। मायूस होके चली गई, खाली भावना वाला नहीं जाता, ते चली गई। अगे प्यारे गुरसिख बाबा बुड्ढा जी ओ मिले, ते बाबा बुड्ढा जी कहने लगे, तुसी मायूस नजर आ रहे हो, why are you so sad? ते माता सुलखनी उन्होंने दस्या कि महाराज जी कहते सीगे कि मेरे कर्मां च औलाद नहीं। बाबा बुड्ढा जी ने एक सवाल पूछा, माता केड़ी भावना नाल तू जाके मत्था टेकिया सीगा, केड़ी भावना नाल? कि माता तू हुण दोबारा जा, पर इस भावना नाल जाई कि हे सतगुरु मैं मत्था टेकना ही आपदे चरणां च, जे लेख है नहीं ना उत्थे भी आप जी ने लिखना सी, इत्थे हुण जे अगे नहीं लिखिया ते हुण लिख दो। मत्था इस भावना नाल टेकना कि जे लेख नहीं ना फिर हुण लिख दो। ते माता सुलखनी जी दोबारा दर्शन करन गए सतगुरु जी दे, ते हुण इन्ने विश्वास नाल विद कन्विक्शन ऐसा मत्था टेकिया, ऐसी वंदना की थी, हाथ जोड़ के बेनती की थी, सतगुरु जी औलाद नहीं, बख्शिश करो। उथे बाबा बुड्ढा जी उन्होंने समझाया सी ना की कहना ते किस तरह मत्था टेकना, जिस किस भावना नाल जाना। हाथ जोड़ के कहने लगी, सतगुरु जी औलाद नहीं, बख्शिश करो। ते सतगुरु मुस्कुरा के कहने लगे, माता तुसी कल भी आए सीगे ते असीं तुहानूं दस दित्ता सीगा ते तुहाडे किस्मत विच बच्चा नहीं। माता जी हाथ जोड़ के कहने लगे, पातशाह जी जे उदों ने लिखिया सी ना उदों ही आप जी ने लिखना सी, हुण भी आप जी ने लिखना, जे उदों ने लिखिया हुण लिख दो। इन्नी भावना मत्था जिहड़ा टेकिया, इस भावना नाल टेकिया, गुरु त्रुठे ते गुरु ने बख्शिश की। कहंदे माता जी दे ना 7 पुत्र होए सी, 7
7 पुत्र होए माता दे। नाउ जस्ट फॉर 1 मिनट, देन वाला ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ ਫਿਰ? ਭਾਵਨਾ ਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਫਿਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ? ਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, surrender in such a way. A lot of us, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। There are some people who go and ਮੱਥਾ ਟੇਕ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ, you must see some people bouncing away when they go into ਮੱਥਾ ਟੇਕ। ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਮਕ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ, ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, I better handle the suit very well। ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਠੀਕ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਖੜੋ ਕੇ 5-5 ਮਿੰਟ 10-10 ਮਿੰਟ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਸੰਗਤ ਵੱਲ। ਕਿਆ ਬਾਤ, ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ। There are some people who come into the darbar, they dress with all the bani and they dress with the works, they will come and stand in front of the Guru. This is reality है, reality। सारा ध्यान ना कि लोग मेरे वाल वेख रहे ने, लोग आखन के वाह 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 वाह, इन्ना भगत बंदा, एक तो 10 मिनट हो गए गुरु के अखां जोड़ के, अखां मीच के खड़ा होया, ध्यान गुरु विच नहीं। कहन तो भाव, the message for today, कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, हे ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਨਾ, it's the end of me। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਕਿ। ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ? ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ ਜੀ ਉਸ ਬਲਾਈਂਡ में दर्शन की गल कर रहे हैं कि एक बार सतगुरु जी ऐसे दर्शन करने कि पता नहीं दोबारा दर्शन होने के नहीं, जिंदगी रहनी के नहीं। भाई कैंठा जी was blind, संगत जा रही सी गुरु हरगोबिंद पातशाह दे दर्शन करन, नेत्रहीन सीगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, he could not go, the whole ਸੰਗਤ was passing by, he was hoping somebody would take him, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ ਜੀ ਆ ਆਏ ਨੇ। महाराज कहने लगे, कैंठिया अरदास की सी ना, अंदरों इन्नी पुकार ना, हे सतगुरु मैं आप जी दे दर्शन करने, जे दर्शन नहीं कीते ते मैं मर जावांगा। इन्ने प्यार नाल पुकार की कि सतगुरु नूं खुद आप आना पिया। ते सतगुरु खुश होके कहने लगे कि कैंठिया इन्ना प्यार, कैंठिया तू उठे, मंग जो मंगना, आस्क व्हाट यू वांट। ते भाई कैंठा ने पता की मंगया कि सतगुरु जी कृपा करो, इस अखां विच रोशनी आप जी पाओ कि आप जी दे दर्शन हो सकन। He asked, he was blind, he told Guru, can you bless me so I can see you। सतगुरु जी ने बख्शिश की थी कैंठे, भाई कैंठे नूं। भाई कैंठा was able to see, महाराज ने कृपा की थी, सिर ते हाथ रखिया,
ਤੇ ਭਾਈ ਕੈਂਠਾ could see perfectly। दर्शन कीते, रज के दर्शन कीते, महाराज के चरणों च ढह के रो रो के दर्शन कीते। फिर पता की आख्या भाई कैंठे ने महाराज नूं कि महाराज जी हुण किरपा करो, ये हुण रोशनी वापस ले लो। He asked to be blind again। भाई कैंठा कहने लगे जिहड़ी आप जी ने रोशनी बख्शिश कीती सी ना, हुण ये रोशनी वापस ले लो। महाराज कहने लगे कैंठिया, जिस चीज वास्ते तू तड़पदा सीगा कि मेरे अखां च रोशनी आए, मैं गुरु दे दर्शन करा, हुण तू अरदास कर रहा कि सतगुरु वापस ले लो, क्यों कैंठिया? कैंठे का जवाब पता की सी? कैंठा कहने लगा पातशाह आप जी दे स्वरूप नूं ना मैं हिरदे विच वसा लिया, हुण अखां मैं चाहना कि अखां होर कुछ ना वेखण, बस I have seen you, that's all I want to see। आप जी दे दर्शन होए, बस आप जी दे दर्शन ही करने। हुण अंदर मैं रूप धार लिया, मैं हुण अंदरली रोशनी नाल आप जी दे दर्शन करांगा, आप जी दे स्वरूप दे दर्शन करांगा। ते जिस तरह भाई कैंठे ने अरदास की थी, महाराज ने उस तरह ही बख्शिश की थी। दर्शना वास्ते इन्नी तांग कि मैं गुरु को जा रहा